Hello my dear students, this is Swati Chawla. Again, I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we will cover all the concepts of the chapter Interface Python with MySQL. In this one short video only. Although I have prepared a separate videos also that are also in detail, and in this video also I will try to cover each and every concept of this chapter even with practical explanation also, so that आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं और जो अगर कोई क्वेरीज है व्हाट आई वांट कि आपके वो साथ के साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. कहीं पर भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डाउट होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप सारे पॉइंट्स अच्छे से समझोगे, वीडियो स्किप नहीं करोगे, एंड इफ यू विल वॉच द वीडियो टिल एंड, देन आई एम श्योर यू कैन से आई विल टेक द गारंटी कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, जितने आपके पाइथन के चैप्टर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस प्रैक्टिकली ऑल्सो, बिकॉज जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करके देखोगे, माइंड में कहीं ना कहीं कोई डाउट जरूर रहेगा. समटाइम इट हैपन्स कि हमने सपोज कोई क्वेश्चन बुक में से करा या कहीं से भी कुछ रीड आउट कर रही हूँ या सपोज मैं ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो आपके माइंड में स्ट्राइक होता है अगर यहाँ पर इसकी जगह ये चीज होती तो क्या आंसर आता. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको आप माइंड में ही रहने दो, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. उससे आपके जो डाउट्स हैं वो इवन और भी क्लियर होंगे. ट्राई टू एक्सप्लोर मोर इफ यू वांट टू लर्न मोर. दिस इज द माय पर्सनल मोटो. Before starting that, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video and your concepts are clear, then please do like this video and share your views in the comment section too. So let's start now. So the name of our topic is Interface Python with MySQL. Interface means to provide a something like connectivity. किसी चीज की connectivity करना. Here we will study the connectivity of Python with MySQL. अब माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है, कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है. Now see बेटा, Python is a different language and MySQL is a separate RDBMS software. Why there is a need to connect these two? अगर हम इफ यू विल टॉक अबाउट सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस और रियल लाइफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे टिकट बुकिंग या रेलवे रिजर्वेशन का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कोडिंग पार्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट वी विल डू इन द पाइथन, एंड वेयर टू स्टोर दैट डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. फॉर दैट वी कैन यूज द RDBMS सॉफ्टवेयर, एंड MySQL is the example of your RDBMS software. Even in your exam also you will the examiner can ask the question ki which software you have used as a backend and which you have used as a front end. Project है इस पर connectivity पर, ठीक है. तो front end पर we are using Python and at the back end we are using MySQL. Front end means जो हमारी main language है जिसमें हमारा software बनेगा, and at the back end we are using MySQL. So see, whenever we are designing some real life applications, we need to manipulate data stored in a database. Means जहाँ पर भी मेरा data store है, we have to manipulate. We have to access it according to our requirement or based upon some conditions. So वो आपका सारा data जो मुझे store कराना है, that will be stored in the database. In order to connect to a database from the Python, we need a library that provides connectivity functionality. For that there are so many libraries, but here we will study the MySQL connector. The process to install this MySQL connector, I am not covering it here. If you want to see the installation process, for that I am having separate two videos that are in the playlist of Interface Python with MySQL. दोनों ही विंडोज का बता रखा है, फॉर विंडोज 7 एंड फॉर विंडोज 10 ऑल्सो, हाउ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू इंस्टॉल दिस MySQL connector. But in here we will study in the brief. This pip command is used to install this MySQL connector. Pip install MySQL connector.
This command you have to write it in the CMD prompt and make sure beta while executing this command your internet connection must be active, because with the help of internet connection आपका जो MySQL connector है that will be installed in your system. After installing, just open your Python shell and type this statement, import mysql.connector. If this statement executed successfully, you are not getting any error. That means जो MySQL connector है that is successfully installed in your computer system. And if it will show error, that means this connector और जो आपने pip command execute की है वो आपकी successfully execute नहीं है. Now these are the steps for creating database connectivity. ये भी आपका एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. What are the steps to create the database connectivity? The very first step is import the package mysql.connector. Now see beta, Python suppose and this is MySQL. MySQL में हमारे पास क्या है बेटा? डेटाबेस. अब मेरे पास डेटाबेस है, टेबल्स है, ठीक है. मुझे अपने पाइथन सॉफ्टवेयर में जो जहां पर मुझे प्रॉपर कोड लिखना है, अब वहां पर मुझे उसको यूज करना है. तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल इंपोर्ट द पैकेज mysql.connector. उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे फ्रॉम पाइथन विद MySQL. फॉर दैट वी आर हैविंग अ कनेक्ट फंक्शन. अब कनेक्शन क्रिएट करने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस. विद द हेल्प ऑफ दैट कर्सर इंस्टेंस और कर्सर ऑब्जेक्ट आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. और एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट. जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो बल्क की फॉर्म में आता है, ठीक है. तो उसमें से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है. उसके बाद एट द एंड वी कैन क्लीन अप द एनवायरमेंट बाय क्लोजिंग द कनेक्शन बिटवीन द पाइथन एंड MySQL. नाउ सी दिस द वेरी फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने 7 स्टेप्स पढ़े हैं. इंपोर्ट mysql.connector. दिस इज mysql.connector. This is the name of the package. If you want, you can use this member aliasing also. This is not fixed कि you have to take this only SQLTR. No. आप यहाँ पर कोई भी member alias ले सकते हैं, any variable name, any identifier. But follow the rules of that valid identifier also. So here I have written import mysql.connector as SQLTOR. That means अब जहां पर भी मुझे ये टर्म लिखनी थी mysql.connector, there we will write just SQLTOR. Now next step is open a connection to a MySQL database. अब हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया. The next thing is we have to create a connection between the MySQL and the Python. For that we are having the connect function. So the syntax is, this is my connection object. I am writing it in short form. This con is my connection object. mysql.connector.connect function we are using. अगर आपने यहाँ पर member aliasing लिखा है तो इस पूरे की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, SQLTOR.connect. And in this 3 are mandatory arguments, host, user and password. डेटाबेस इज ऑप्शनल. सपोज आपने डेटाबेस ही क्रिएट करना हो पाइथन के थ्रू, ठीक है, तो दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल. ये आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं. होस्ट, यहाँ पर आपको होस्ट नेम लिखना, बाय डिफॉल्ट इट्स लोकल होस्ट. यूजर, यूजर नेम, बाय डिफॉल्ट इट्स रूट. एंड पासवर्ड, हियर यू कैन राइट PASSWD और पासवर्ड कंप्लीट, बोथ आर करेक्ट. हियर यू हैव टू राइट द स्पेसिफाई द पासवर्ड ऑफ योर MySQL. जब आप MySQL को हम इंस्टॉल करते हैं वहां पर पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है. और आपने अगर MySQL की कमांड्स भी एग्जीक्यूट किए वहां पर पासवर्ड एंटर करते हैं. दैट पासवर्ड यू हैव टू राइट इट हियर. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस. जिस डेटाबेस से आपको क्या करनी है, कनेक्टिविटी करनी है, अपने पाइथन को MySQL से कनेक्ट करना. दिस वाज द सिंटैक्स. नाउ सी दिस एग्जांपल. con equals to mysql.connector.connect, host equals to localhost, user equals to root, password and then database name is school. इससे क्या होगा, अगर ये आपका सब कुछ करेक्ट है, सारे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज करेक्ट हैं, तो देन इट विल क्रिएट द कनेक्शन सक्सेसफुली, अदरवाइज इट विल शो यू द एरर. इफ यू वांट कि आपके सिस्टम में जो है उसका करंट यूजर का नेम क्या है, ये होस्ट कौन सा है,
तो देन यू कैन राइट एग्जीक्यूट दिस कमांड इन MySQL। MySQL प्रॉम्प्ट के आगे हम लिखेंगे select current user, तो then it will show you the current user root at the rate of local host. That means username is root and the host is local host. ठीक है, अब इसको एक बार सिर्फ इतना पार्ट हम अब एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। नाउ लेट मी जस्ट ओपन माय पाइथन। ठीक है, पहले हमने पाइथन शेल में देखेंगे import mysql डॉट कनेक्टर। नॉट शोइंग एनी एरर, दैट मींस पिप कमांड जो मैंने इसमें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रखी है। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू import mysql डॉट कनेक्टर। ठीक है, इफ यू वांट द मेंबर अलाइज वो भी आप ले सकते हो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। नाउ वी हैव टू कॉल द कनेक्ट फंक्शन ऑफ दिस पैकेज mysql डॉट कनेक्टर, और फंक्शन का नेम क्या है बेटा? कनेक्ट। इन दैट वी आर हैविंग 4 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट वन इज होस्ट, उसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी लोकल होस्ट। देन सेकेंड वन इज द यूजर, दैट इज रूट। पासवर्ड जो आपके MySQL का पासवर्ड है बेटा, इन माई केस इट्स 1 2 3 4 5। अगर आपके केस में कुछ हो रहा है तो यू हैव टू राइट दैट ओनली, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस। सपोज द नेम ऑफ माय डेटाबेस इज क्लास 12। ठीक है, अभी ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कनेक्ट प्रॉपरली हो गया कि नहीं हुआ। फॉर दैट वी आर हैविंग is connected function. If you have to write the name of the connection object, that is con dot is connected. Now this function will return true if the connection established successfully. अगर कनेक्शन में कुछ क्रिएशन में प्रॉब्लम होती है तो then it will return false. आप यहाँ पर चाहो तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, फॉल्स करके इस तरीके से। तो एरर व्हाइल कनेक्टिंग द डेटाबेस, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू है तो वो हमारा इफ पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन प्रिंट द एल्स पार्ट आल्सो। प्रिंट एरर व्हाइल कनेक्टिंग द डेटाबेस। ठीक है, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुली। दैट मीन्स अब मेरा पाइथन का जो MySQL से कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। सपोज हियर आई एम इरेजिंग दिस, अब मैंने पासवर्ड इनकरेक्ट लिख दिया, दैट मीन्स अब वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस, तो देन इट विल शो यू दिस एरर। ठीक है, ये आपकी एक्सेप्शन जनरेट करेगा। This way we can determine whether my connection is successfully established or not. अब मैंने यहाँ पासवर्ड करेक्ट कर दिया। Now it will display this connection established successfully. ठीक है, it's not mandatory to write this, but अगर हाँ आपने लिखना है कि पता लग जाए कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो then you can write this. Now next point बेटा, create a cursor instance. अब ये cursor instance क्या होता है? A database cursor is a special control structure that facilitates the row-by-row processing of records in the result set. Result set क्या होता है? जो भी मैंने query अप्लाई की, उस query के अकॉर्डिंग मुझे records retrieve होकर मिलेंगे। Let's suppose ये मैंने कोई query लगाई, ये मुझे records मिले। This is called result set. अब इस रिजल्ट सेट से मुझे 1 by 1 अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्या करना है? आइटरेट करना है, रो बाय रो प्रोसेसिंग करनी है। सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द कर्सर इंस्टेंस, एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया वो लिखोगे। विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। और जो यहाँ पर आपको होएगा बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर, दैट विल बी योर कर्सर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट अब आपने कर्सर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। विद द हेल्प ऑफ दैट कर्सर ऑब्जेक्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। सिर्फ इतना पोर्शन आपने ध्यान रखना है। अगर आपको MySQL अच्छे से आता है तो आप इजीली अपने जो कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हैं दैट यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली।
Now see this beta. If you want, I am erasing this because हमारा जो connection है वो successful established हो चुका है. Now the next thing we have to create the cursor object. And how we will create the cursor instance? With the help of connection object, we have to call the cursor function. Cursor function को call करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे बेटा? अपनी with the help of this cursor object, we have to execute our query. अब now suppose let me show you this database with name class 12. If I am writing suppose show tables. So these are the tables in my database. Let's suppose class 12. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल का डेटा देखना तो देन वी कैन राइट द क्वेरी अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब सपोज हियर आई एम राइटिंग शो टेबल्स. ठीक है. अब डेटा डिस्प्ले करने की भी टू मेथड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ फेच फंक्शन एंड इवन यू कैन यूज इट विदाउट फेच फंक्शन ऑल्सो. सपोज हियर आई एम राइटिंग फॉर आई इन CUR एंड देन प्रिंट आई. नाउ सी दिस. आपका जो शो टेबल्स मीन्स जो आपके डेटाबेस हैं, सॉरी डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो आपकी सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई. और किस फॉर्म में डिस्प्ले हुई है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल, उसके बाद ऑलवेज वी हैव टू उसके बाद क्या आता है बेटा? कॉमा. और सेकेंड मेथड जो आपकी बुक्स में गिवन है इवन इन योर कोर्स ऑल्सो, कि वी हैव टू फेच द डेटा यूजिंग फेच फंक्शंस गिवन है. So what we will do? Data equals to cursor object dot fetch all. अभी सारे फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे. Here I am just printing data. सिर्फ मैं डेटा में देख रही हूँ कि जब मैं फेच करूँ तो मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है? I am having the list of tuples. Means using fetch all function we are getting the data in the form of a list of tuple. और जो लिस्ट है बेटा उसके अंदर जो आपके टपल्स हैं, दिस फर्स्ट एंड सेकंड, वो आपकी एक रो है. ठीक है. एक रो मेरी एक टपल होगी और कंप्लीट मैं उसको क्लब कर दूंगी. वो सारे डेटा किसके फॉर्म में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. नाउ वी आर यूजिंग द फॉर लूप फॉर आई, लेट्स सपोज इन डेटा एंड देन प्रिंट आई. ठीक है. अब ये मेरा डेटा फेच होकर के आ गया. Now next thing, suppose I am writing select star from table name. इस नेम से टेबल है. Now I am executing this command. अब मेरी टेबल में ये डेटा है बेटा complete. ठीक है. If you want to check in a MySQL, that also we can do. Select star from student. ये डेटा है बेटा. ठीक है. यहाँ पर मेरे पास जो कुछ नल वैल्यूज हैं टपल की फॉर्म में होगा तो पाइथन मुझे क्या रिटर्न करके देता है बेटा? नन. अगर कोई एम्प्टी वैल्यू होती है तो पाइथन क्या रिटर्न करता है वहां पर? नन. तो जो आपके नल वैल्यूज हैं वहां पर ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? नन से. इसी तरीके से आप अपने सिलेक्ट के साथ वेयर की क्वेरीज भी अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू मेडिकल. मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग स्ट्रीम मेडिकल वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे. सी दिस. सी द रिजल्ट नाउ. द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मेडिकल स्ट्रीम वो डिस्प्ले हो गए रिजल्ट. ठीक है. जो भी आपकी MySQL की क्वेरीज है दैट यू जस्ट हैव टू राइट इन दिस एग्जीक्यूट फंक्शन, वो क्वेरीज आपकी क्या हो जाएंगी बेटा? एग्जीक्यूट. नाउ नेक्स्ट इज बेटा एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट. व्हाट इज रिजल्ट सेट? A set of records retrieved as per the query. जब भी हम कोई क्वेरी अप्लाई करते हैं वहां से भी हमने क्या करा? स्ट्रीम इक्वल्स टू मेडिकल. जो वो रिजल्ट आया मेरे पास वो किसकी फॉर्म में था बेटा? वो रिजल्ट सेट. वहां से हमने डेटा को क्या करा? फेच करा. तो वी आर हैविंग बेसिकली 3 फेच फंक्शंस. फेच ऑल, फेच वन एंड फेच मैनी. ठीक है. Now see this. ये आपका एक वेरिएबल नेम है. यहाँ here you can take any variable name. With the help of cursor object, you have to call the fetch functions. Fetch all. जहां पर भी मेरा पॉइंटर होगा, it will fetch all the records. Means suppose I am having 14 records और मेरा पॉइंटर by default beginning में होगा.
ठीक है, तो इट विल फेच द 14 रिकॉर्ड्स एज पर द क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स. फेच 1, इट विल रिटर्न 1 रिकॉर्ड. एक टाइम पर ही एक ही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा. और जनरली होता क्या है बेटा, सपोज इन MySQL आई एम हैविंग दीज रिकॉर्ड्स. तो जब हम पाइथन में फेच फंक्शन यूज करते हैं, इफ आई एम यूजिंग फेच ऑल, पॉइंटर बिगनिंग पर है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके डिस्प्ले करा देगा. बट इफ आई एम यूजिंग फेच 1 और फेच मैनी, व्हाट माय फेच 1 फंक्शन विल डू, इट विल फेच 1 रिकॉर्ड, तो पॉइंटर विल मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड. देन अगेन इफ यू आर अप्लाइंग फेच 1 फंक्शन, तो वो आपका नेक्स्ट एक रिकॉर्ड और रिट्रीव करेगा. फिर मेरा पॉइंटर मूव करा नेक्स्ट रिकॉर्ड के बिगिनिंग पर. फिर सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फेच ऑल, तो फेच ऑल फंक्शन मेरा यहाँ से रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा इंस्टेड ऑफ द बिगिनिंग. जहां पर मेरा एट प्रेजेंट पॉइंटर है, फेच ऑल फंक्शन विल रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट selected record till the end. And fetch many, this method fetches n records in the form of a tuple or in the form of a list of tuple. Here this n is the argument. Suppose I am writing 5, so it will fetch 5 records from the table. This row count, इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, this is a property of cursor object, not a function. तो आपने यहाँ पर जो है रो काउंट के बाद ब्रैकेट्स नहीं लगाने. ठीक है, इफ यू विल पुट ब्रैकेट्स दैट मींस वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन. बट रो काउंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्सर ऑब्जेक्ट, एंड दिस प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिट्रीव, कि हमने अब तक कितने नंबर ऑफ रोज को रिट्रीव किया है, इट विल डिस्प्ले द दैट नंबर. ठीक है, नाउ जस्ट एक्सप्लोर, आई एम एक्सप्लोरिंग दिस फेच फंक्शंस, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा. ठीक है, इसको अभी हम लिख देते हैं complete query select star from student. अब मैंने क्या लिखा बेटा, fetch all. It will fetch all the records from the database. Now suppose I am writing here यहाँ पर fetch many. ठीक है, and here I am writing 5. That means it will fetch first 5 records. यहाँ पर हम कुछ एक लिख देते हैं कि पता लग जाएगा कि इसके बाद ये स्टेटमेंट है. Let me just write this. तो दैट मीन्स इट विल फेच फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स. अब इसके बाद अगर मैं फेच ऑल लगा देती हूँ बेटा, अब वो कहां से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा. हियर आई एम राइटिंग फेच ऑल फ्रॉम 6 टू टिल एंड, लास्ट 14th रिकॉर्ड तक. ठीक है, दैट मीन्स अब जब मैंने फेच मैनी यूज किया, सपोज दिस आर माई कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, सपोज टोटल 12 है, वैसे 14 है इस टेबल में. मैंने फेच मैनी में लगाया बेटा 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 रिकॉर्ड्स रीड कर लेगा. अब आफ्टर रीडिंग 5 रिकॉर्ड्स माय पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th रिकॉर्ड. तो अगर मैं फेच ऑल लगा रही हूँ, तो वो आपका पॉइंटर यहाँ पर है, यहाँ से लेकर एंड तक जितने रिकॉर्ड्स होंगे इट विल रिट्रीव एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स. ठीक है, और जो रो काउंट प्रॉपर्टी है, दैट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. Suppose here I am writing cursor dot row count. ठीक है, total records retrieved. और इसी को हम लिख देते हैं एक बार एंड में. और now see the difference. First it is retrieving 5 records, so total records retrieved 5. उसके बाद क्या है 6 to 14. अब वो इस टोटल को नहीं काउंट करेगा, जितने उसने अब तक टोटल रिकॉर्ड्स को फेच किया, इट विल काउंट दैट नंबर. मींस जो ये आपका 14 है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं है, ये कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है जितने इसने अब तक रिकॉर्ड्स को फेच किया. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इसके आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं fetch many and then let's suppose 10. ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स 5 and then 10 means I want to say कि अगर सपोज टेबल में रिकॉर्ड्स 14 है और मैं यहाँ पर 5 के बाद 20 और रिट्रीव करना चाह रही हूँ, तो वो एरर शो नहीं करेगा. ठीक है, बट सपोज हियर आई एम राइटिंग 14, टोटल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, टोटल रिकॉर्ड्स आर 14. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज
4 एंड देन 10। अब ये टोटल रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए, यहाँ 9 कर देते हैं, एक रिकॉर्ड अभी भी रह गया। ठीक है, टोटल 13 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए। नाउ हियर आई एम यूजिंग fetch 1 data equals to cur dot fetch 1. What my fetch function will do? It will fetch one record. अब वो टपल की फॉर्म में ही है, एक ही रिकॉर्ड है। अब उसके लिए मुझे वहां पर फोर लूप को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे टोटल रिकॉर्ड्स कितने रिट्रीव करेगा। कितने रिट्रीव होने चाहिए बेटा? वैल्यूज क्या क्या आएंगी रो काउंट प्रॉपर्टी की? फर्स्ट हमने देखो किसका किया, जो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा fetch many 4, ये 4 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए। आफ्टर दैट आई हैव रिटन fetch many 9, तो उसके बाद 9 प्लस 4 13, टोटल 13 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए। उसके बाद मैंने fetch 1 लिखा जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड फेच किया ना, बट टोटल रिकॉर्ड्स रिट्रीव 14। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर हम इसकी दोबारा से fetch 1 लिख दें तो क्या आंसर आएगा? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया तो इट्स वेरी गुड, नहीं आया तो आना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या शो करेगा बेटा? नन। दैट मीन्स अगर मेरे पास टेबल में और रिकॉर्ड्स नहीं है रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वो क्या रिटर्न करेगा? मेरा fetch 1 फंक्शन नन रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ fetch 1 की जगह fetch many लिख दूं एंड हियर आई एम राइटिंग 2, तो देन इट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। रीजन बीइंग दैट बेटा जो fetch many फंक्शन है, इट इज रिट्रीविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ टपल। अब टपल तो है नहीं मेरे पास क्योंकि रिकॉर्ड नहीं आया, तो देन इट विल रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। And suppose here I am writing fetch all, so then it will show you the error because no result set to fetch from. तो that means अगर मैं अपने last record पर हूँ and if I am calling fetch all function, तो then it will generate error क्योंकि और records fetch करने के लिए नहीं। ठीक है, कोई result set मेरे पास नहीं है। If I am using fetch many function, it will return empty list. And if I am using fetch one function, तो देन इट विल रिटर्न नन, क्योंकि वो रिकॉर्ड टपल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। अब टपल रिटर्न होकर नहीं आएगी तो देन इट विल शो नन। दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस फेच फंक्शंस। एंड रो काउंट प्रॉपर्टी इज आल्सो क्लियर आई थिंक। नाउ सी नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड क्वेरी। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस विल यूज इन योर प्रोजेक्ट्स आल्सो। पैरामीटराइज्ड क्वेरी में क्या है बेटा, यूज क्यों और कब करते हैं? अब तक हमने सारी चीजें फिक्स रखी। ठीक है, सपोज सर्वे स्ट्रीम इक्वल्स टू मेडिकल और समथिंग लाइक दिस। व्हाट इफ वी वांट द यूजर टू एंटर द वैल्यू फॉर दैट? तब तो हमें रन टाइम पर वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो फॉर दैट वी आर हैविंग पैरामीटराइज्ड क्वेरी एंड देयर आर टू मेथड्स फॉर पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ओल्ड स्टाइल एंड न्यू स्टाइल। यू कैन यूज एनी वन इन विच यू आर कंफर्टेबल, बट अगर दोनों ही पता अलग जाए, समझ में आ जाए, it is better to understand both, but you can use one according to your convenience. The first one is the old style. इसमें आपका सिंटेक्स क्या रहता है बेटा? f%v। This f आपकी क्या होगी बेटा? टेम्पलेट स्ट्रिंग। कौन से वाली टेम्पलेट स्ट्रिंग? SQL की। जो आपकी SQL की क्वेरी है वो लिखोगे परसेंटेज एंड देन v। जो ये आपका v होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। अब मेरी SQL की क्वेरी क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन %s। नाउ सी दिस %s, दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 70। अब 70 हमने यहाँ लिख दिया। अगर यूजर से वैल्यू लेनी, इनपुट इन फंक्शन लिखेंगे, वो जो वेरिएबल नेम होगा दैट विल सब्स्टिट्यूट हियर। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू की डेटा टाइप varchar है, मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, तो देयर यू हैव टू यूज दिस कोट्स आल्सो। एंड इन केस ऑफ अ न्यू स्टाइल, select star from table name where marks greater than, अब %s की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएंगी? कर्ली ब्रैकेट्स, डॉट फॉर्मेट फंक्शन है और फिर जो वैल्यूज रिप्लेस करानी है। ठीक है, जो आपकी SQL की क्वेरी है वो यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद डॉट फॉर्मेट फंक्शन है। सिमिलरली इन ओल्ड स्ट्रिंग जो आपकी डबल कोट्स में क्वेरी लिखोगे वो यहाँ से यहाँ तक है, फिर परसेंटेज करके जो आपकी v वाली टपल है फिर वो हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली। Now let me just erase all this. Select star from student. Here I am writing fetch all. इसको erase कर देते हैं। ठीक है,
चलो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस आर्ग्यूमेंट ऑल्सो. ठीक है, अब मैंने यहाँ क्वेरी लगाई टोटल स्ट्रीम कौन कौन सी है बेटा, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल. Suppose I want to retrieve the record of those students who are studying in medical, who are having medical stream. So what I will write, where stream equals to medical. ठीक है, इसमें क्या है बेटा, अगर आपकी क्वेरी सब डबल कोट्स में है तो you have to write this in a single quote. Now see this, total records retrieved 4. Now what I want कि at the run time user will enter the name of the stream. ठीक है, तो for that we have to take the input from the user. Let's suppose I'm writing T. That will be an input. Enter stream. कि मीन्स आपको किस स्ट्रीम का डेटा डिस्प्ले कराना है. Select star from student where stream equals to %s. अब ये डबल कोट्स क्लोज, मॉड्यूलस f मॉड्यूलस v. f क्या है बेटा, आपकी ये कंप्लीट SQL की क्वेरी विद इन कोट्स तक. ठीक है, परसेंटेज v. v मीन्स जो आपकी टपल है. सपोज हियर आई एम राइटिंग t. ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख देते, t और ये कोमा. अब स्ट्रीम सपोज मैंने एंटर करी मेडिकल, टोटल रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड 4. अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं. Now stream I am entering, let's suppose commerce. तो now it will display the records of commerce students. ठीक है, और अगर suppose I am writing here humanities, तो it will display the record of humanities. ये इससे क्या हुआ, मैंने रन टाइम पर जो वैल्यू एंटर करूंगी वो आ जाएगी. अब इसको अगर मैं यहां से हटा दूं, now see, अभी भी आंसर आ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स जो हमने ये चीज पढ़ी थी कि वो टप्पल की फॉर्म में ही होना चाहिए, और इन सम बुक्स और एट सम अदर प्लेस इफ यू विल फाइंड कि वो टप्पल की फॉर्म में नहीं है, तो दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट, बोथ विल वर्क. ठीक है, नाउ सी दिस, अगर मेरे को यूजर से ग्रेड भी एंटर कराना है या मार्क्स एंटर कराने, किससे ज्यादा मार्क्स के चाहिए. सपोज आई एम राइटिंग मेडिकल और ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया मेडिकल स्टूडेंट्स का. ठीक है, एंड इन दिस 2 students are having grade B and 2 are having grade C. मार्क्स चेक करते हैं बेटा, 55, 76, 48, 56. इफ आई अप्लाई द क्वेरी की जिसके मार्क्स सपोज 55 से अबव हैं, या 55 या उससे अबव हैं, या 50 से अबव हैं, तो मुझे उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है. दैट मार्क्स भी मुझे कहाँ से चाहिए, यूजर से इनपुट कराने हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, एक और वेरिएबल ले लेते हैं m. अब ये किस टाइप का होगा बेटा, मार्क्स इंटीजर. फ्लोट में वैल्यूज नहीं है, फ्लोट में वैल्यूज हैं तो हमें फ्लोट लेना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर अब हम ले लेते हैं फ्लोट. एंटर मार्क्स. ठीक है बेटा, अब इसके बाद मेरे को किस में करना, क्वेरी देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू, उससे रिप्लेस हो जाएगा, एंड मार्क्स इक्वल्स टू. अब वो कौन सी वैल्यू क्या लिख दें यहाँ पर, %s विदाउट कोर्स. ठीक है, विद इन कोर्स हम किसके वैल्यूज लिखेंगे, द वंस विच आर हैविंग द डेटा टाइप varchar. अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, t, m. ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं. जो कन्वेंशन है इन दिस, तो यू हैव टू राइट इट इन द ब्रैकेट्स. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. स्ट्रीम लेट सपोज आई एम एंटरिंग मेडिकल और मार्क्स लेट सपोज 55. तो 55 से मैंने क्या कंडीशन लगाई है बेटा, वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 55. ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ लगा देती हूँ लेट सपोज ग्रेटर देन. स्ट्रीम मेडिकल मार्क्स 55. तो अब जिन स्टूडेंट्स के 55 से ग्रेटर हैं, 55 भी आई हैव इंक्लूडेड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है, तो दैट मीन्स 55 एंड अबव. अब कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 3. हम किसी और का भी चेक कर सकते हैं, क्यों सिर्फ मेडिकल वालों का ही चेक करें हैं. ह्यूमैनिटीज मार्क्स लेट सपोज 70. तो फ्रॉम स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज वी आर हैविंग 2 students who are securing marks greater than and equals to 55. This was the old method.
अगर आपका यहाँ पर कोई एरर शो हो रहा है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आप यहाँ पर अपना ये जो हमारा क्वेरी वेरिएबल है, लेट मी जस्ट शो यू दिस, हमने सारी की सारी क्वेरी इसी एग्जीक्यूट फंक्शन में लिख दी, ओके। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि ये सारा जो पार्ट है इसको हम एक सिंपल वेरिएबल लेकर के, सपोज मैंने वेरिएबल लिया क्वेरी नेम से, उसमें सारा का सारा असाइन कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ से जो है अपना क्वेरी वेरिएबल को भी यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। क्या किया हमने, एक और वेरिएबल ले लिया, सपोज क्वेरी नेम से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वही सारी चीजें जो हमने एग्जीक्यूट फंक्शन में लिखी थी उसको हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल में, और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने इस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अब आपका अगर क्वेरी के टाइम पर कोई एरर आ जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मिस्टेक की है, यहाँ पर क्वेरी प्रिंट करा कर दे, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस टाइम कॉमा सेंटर कर देते हैं एंड मार्क्स 45, ठीक है। अभी आपकी एसक्यूएल की क्वेरी आ गई, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी में मिस्टेक होगी तो आपको यहाँ पर देखकर इजीली पता लग जाएगा, अगर एसक्यूएल की क्वेरीज का सिंटेक्स आपको ध्यान है तो, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपकी एसक्यूएल के सिंटेक्स क्लियर है, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। नाउ अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी, दैट इज द न्यू स्टाइल। उसमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू, इस परसेंटेज को रिप्लेस कर देंगे हम ब्रैकेट से, एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर परसेंटेज के आगे हम क्या लिख देंगे, डॉट फॉर्मेट फंक्शन एंड देन टी कोमा एम, रिमेनिंग सेम। अब इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये हमने क्वेरी प्रिंट कराई थी, और जिस कॉमर्स स्ट्रीम में है और मार्क्स क्या है 46, अब उससे अबव ये आपके सारे के सारे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, पैरामीटराइज्ड क्वेरी वी हैव डन, नेक्स्ट इज द कमिट फंक्शन। अब कमिट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम चेंजेस अपने डेटाबेस में कर रहे हैं पाइथन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस कमिट फंक्शन, व्हेन वी कॉल दिस कमिट फंक्शन, तो आपका जो सारा डेटा है वो आपका वहां पर सेव हो जाएगा, ठीक है। कमिट फंक्शन इज यूज्ड टू सेव द चेंजेस इन द डेटाबेस फिजिकली, आपके डेटाबेस में चेंजेस को सेव करने के लिए। अभी तक हमने सिर्फ क्वेरी लगाई, क्या हमने कोई डेटाबेस में चेंज करा, नहीं करा, ठीक है। इफ आई वांट टू अप्लाई क्वेरीज लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इनसे मेरा डेटाबेस में चेंज होगा वैल्यूज में। फॉर दोस कमांड्स वी हैव टू कॉल दिस कमिट फंक्शन। व्हाट इट विल डू, इट विल सेव द चेंजेस इन द डेटाबेस। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज, call the commit function with the help of an connection object. That means कर्सर ऑब्जेक्ट से नहीं, जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, दिस CON जो हमने यहाँ पर लिया बेटा, this. With the help of this connection object we have to call the commit function, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, और टेबल भी यहीं से क्रिएट कर देते हैं पाइथन के थ्रू, नॉट विद MySQL, ठीक है। MySQL के थ्रू तो मेरे स्टूडेंट्स को पहले से आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं क्वेरी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेरी में हम लिखेंगे बेटा SQL की क्वेरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम लेट्स सपोज demo1, यहाँ पर मैंने लिख दिया ID, इंट और प्राइमरी की, कोमा नेम varchar, कोमा मार्क्स लेट्स सपोज इंटीजर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद डबल कोट्स, ठीक है। इसका एक बार साइज डिक्रीज करते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो बेटा, वो बैकस्लैश लगाकर वो स्ट्रिंग वापस से आपकी नेक्स्ट लाइन, मीन्स अगर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा करके एंटर प्रेस कर दो, उसी के आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नाउ सी दिस, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी प्राइमरी की हमने ले लिया, इंटीजर, नेम एंड देन मार्क्स, ये आपकी क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने इस क्वेरी को क्या कराया, एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, कर्सर डॉट कमिट, कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस,
ये हमने क्या थी, एक सेकेंड, सॉरी, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, दैट मीन्स डेमो 1 टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम डेमो 2 कर देते हैं। आई होप डेमो 2 ना हो उसमें, ठीक है। चलो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये मैंने क्वेरी प्रिंट कराई है जो हमने एग्जीक्यूट की है। नाउ अब हम इसको डेटाबेस को करते हैं, शो टेबल्स। अब इसमें देखो डेमो 2 नेम से यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना हो, DESC डिस्क्राइब एंड देन टेबल नेम। नाउ सी दिस, यही हमने कॉलम्स क्रिएट की, इंसर्ट किए हैं अभी। आईडी ऑफ टाइप इंटीजर, प्राइमरी की, नेम varchar एंड मार्क्स इंटीजर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज इंसर्ट। अब मुझे इसमें क्या करनी है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब इसमें हमारे को दोबारा से टेबल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंसर्ट की क्वेरी बेटा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम लेट्स सपोज निशा, एंड देन मार्क्स। ये ब्रैकेट तो हो गई बेटा आपकी क्वेरी वाली, और ये हो गए आपके डबल कोट्स, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, कमिट करा। नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ये हमारी क्वेरी प्रिंट हो गई। अब अपने डेटाबेस में चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। नाउ सी दिस, अब मेरा एक रिकॉर्ड जो हमने अभी एंटर किया है वो आपका यहाँ पर सेव हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पर बार बार क्यों वैल्यू सेव करें, ठीक है। बट आई वांट कि रन टाइम पर जो है यूजर वैल्यूज एंटर करता चला जाए और वो वाली आपकी एड ऑन होती चली जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या चेंज करेंगे, वाइल लूप मैंने लगाया बेटा यहाँ पर ट्रू, ठीक है। अब मैं यूजर से क्या क्या एंटर करवा रही हूँ, एक रोल नंबर, एक लेट सपोज नेम और एक मार्क्स। 3 things I required, int, input and then roll number, and then here an input for name, and then m equals to int, input और marks। यहाँ पर यूजर से वो वैल्यूज एंटर कराओगे बेटा जो मुझे अपनी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब यहाँ पर इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज दिस ओल्ड फॉर्मेट और न्यू वन वाला, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से किससे रिप्लेस कर दिया, %s, आफ्टर दैट परसेंटेज, और फिर ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, r, n एंड m। ये हमारी क्वेरी हो गई। इसको मैंने प्रिंट करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया, कमिट करा दिया। ये हो गया फॉर 1 रिकॉर्ड। Now we will ask from the user कि do you want to enter more records? अब यूजर से हम चॉइस ले लेते हैं y और n। If ch in कैपिटल N स्मॉल n, अगर उसने n प्रेस किया मीन्स नो, तो हम यहाँ से क्या आ जाएंगे, ब्रेक लूप से बाहर, ठीक है। इफ यू वांट तो हम यहाँ पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं सारे के सारे। वो कैसे लिखेंगे, cur डॉट एग्जीक्यूट, और अब हमारी क्वेरी क्या रहेगी बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डेमो 2, ठीक है। उसके बाद हम अपने डेटा को क्या करेंगे, फेच करेंगे, फेच ऑल, और फिर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम इसको क्या करा देंगे, प्रिंट। ये सारा हमने अभी पढ़ा था बेटा इससे पहले, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रोल नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन, 2 नेम लेट्स सपोज नेहा, मार्क्स 99। अब ये क्वेरी आ गई जो इंसर्ट हुई है, ठीक है। इसको आप चाहो तो प्रिंट फंक्शन को हटा सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मोर रिकॉर्ड, यस, रोल नंबर 3 एंड नेम एंड देन मार्क्स, ठीक है। मोर रिकॉर्ड, यस, रोल नंबर 4, नेम एंड मार्क्स, मोर रिकॉर्ड, नो। अब उसने मुझे यहाँ पर ये सारे 4 रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। अब अगर हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे तो वहां पर भी हमने कमिट फंक्शन लगाया था, तो ये आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए बेटा, सेव। नाउ इन दिस वे वी कैन इंसर्ट आवर रिकॉर्ड्स इन अ टेबल फ्रॉम पाइथन टू MySQL. If you will execute this part again, suppose I am executing this again,
4 records already I am having in my table. Now suppose I am entering roll number 5, name Priyanka, and marks let's suppose 89. More records, yes, roll number 6, name Pooja, and then marks. ठीक है, more record no. अब total records कितने fetch होंगे बेटा? 6. 4 already in my table and 2 more records I have added. तो even in my table also in MySQL अब total records कितने होंगे बेटा? 6. ठीक है. अब next हम करते हैं बेटा, insert we have done, creation of table we have done. Now we are left with only update and delete queries. अब इसको हम open करेंगे. I am commenting this portion. This is not required now. अब हमने क्या करना है, यहाँ query लिखनी है. Now suppose I want to update table name, set, let's suppose जो roll number 3 है, यार मुझे मीन्स इट्स अप टू यू कि आप क्या क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं. यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट कि यूजर कोई भी रोल नंबर एंटर कर दे, उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स भी वो एंटर कर दे कि किसके मुझे मार्क्स को अपडेट करना है. तो यहाँ पर हम यूजर से क्या क्या इनपुट करा लेते हैं, एक रोल नंबर और एक मार्क्स. ठीक है. नेम नॉट रिक्वायर्ड. नेम करवाना तो नेम भी करवा लो, नो इश्यू. ठीक है. अपडेट टेबल नेम, सेट. अब मार्क्स के लिए क्या बेटा, m इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, %s वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, जो कॉलम का नेम है वो लिखना है बेटा. कॉलम नेम इज id, तो हियर आई एम राइटिंग id. वेयर id इक्वल्स टू %s डबल कोट्स क्लोज and then percent and then m comma r लिखेंगे बेटा. फर्स्ट वाली वैल्यूज फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट होगी. फर्स्ट क्या है बेटा, मार्क्स. तो अपडेट टेबल नेम, सेट मार्क्स इक्वल्स टू दिस, वेयर id इक्वल. ठीक है. यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कॉलम नेम मार्क्स. अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है. कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्वेरी. ठीक है. उसके बाद अब मेरी वैल्यूज अपडेट हो गई डेटाबेस में, मेरे टेबल में. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसको मैंने दोबारा से क्या कर दिया, डेटा को फेच करके प्रिंट कर दिया. अब इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं? इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई मिस्टेक है, तो यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक. अगर लग रहा है मिस्टेक नहीं है, तो आई थिंक पता होना चाहिए अब तक. ठीक है. रोल नंबर 3, मार्क्स इज 89. अब देखो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो गई, अपडेट. बट अगर मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस चेक करूं, तो यहाँ पर क्या जो रोल नंबर 3 का डेटा है वो मेरा यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं. ठीक है. दैट मीन्स कमिट फंक्शन क्या करेगा, जो मेरे डेटाबेस में टेबल है MySQL में, ये वहां पर डेटा को अपडेट कर रहा है. अभी देखो यहाँ पर हमने पाइथन में कमिट फंक्शन को कॉल नहीं किया. ठीक है. बट मैंने अभी क्या बोला कि whenever we have to update the values in a table of MySQL, we have to call the commit function. अब यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो वैल्यू आई है 89, ये इसने डेटा इसके पास जो था इसके लिए वहां से फेच कर लिया उस अकॉर्डिंग टू क्वेरी. बट जो मेरा डेटा है वो डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ है. फॉर दैट वी हैव टू कॉल दिस कमिट फंक्शन. और कमिट फंक्शन जनरली आपका कब होगा बेटा, whenever you are updating any values in a database, especially in case of insert, update, delete, alter और drop, जिससे आपकी डेटाबेस पर इफेक्ट हो रहा है वैल्यूज पर. एग्जीक्यूट. रोल नंबर 3, मार्क्स अब 89 नहीं करते, 56 कर देते. यहाँ पर डिस्प्ले हुआ. अब हम इसको MySQL में चेक करेंगे. नाउ सी हियर, अब आपका जो हमारे अपडेशंस हैं वो MySQL वाली टेबल में भी अपडेशन शो हो रहे हैं. क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक इतना कंसेप्ट? नाउ डिलीट कमांड, यूजर से रोल नंबर एंटर करा लेते हैं, किस रोल नंबर का डेटा डिलीट करना है. एंड द सिंटेक्स इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर id इक्वल्स टू, अब दूसरे वाला मेथड यूज कर लेते हैं. ठीक है. डॉट फॉर्मेट और रोल नंबर किस में है बेटा, R में. क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कमिट करेंगे, फिर हम डेटा को फेच करेंगे, फिर डेटाबेस में चेक भी करेंगे.
Now roll number, let's suppose 6. Oh, where clause I forgot to add. यहाँ पर ऐड करते हैं, delete from table name. Table name is demo2, where id equals to this. Now let's execute this again. Roll number 6. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, clear, roll number 6 का data delete हो गया. Now we will check in our database also. Now see here, now we are having total 5 records. Earlier we were having 6 record, और जो ये आपका 6th record है बेटा, this one, this gets deleted now, as you can see the effect here. ठीक है, इसी के साथ हमारा कौन कौन से हो गए बेटा, fetch functions I told you, fetch, fetch all, fetch many, fetch one, ठीक है, and then row count property we have studied. प्लस हम जो है डेटाबेस में अपडेशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एंड इवन इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू द क्रिएट टेबल कमांड आल्सो, हाउ टू create a table with Python, from Python with to MySQL. So I have covered all these concepts of interface Python with MySQL in detail. Now I am expecting your doubts are clear now, but still if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.